Hello, how are you all, dear genius brains? Are you all ready for a new chapter with your friend Aprajita? So yes, we start with the Acknowledge series of Class 2 English Grammar by Amit Publications. So children, today we are going to do chapter number 5. और क्या है ये chapter 5? This is nouns, common and proper. नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे और नाउन्स में भी कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. सो लेट्स स्टार्ट. नाउन्स. नाउ लुक एट दीज पिक्चर्स. नेम द थिंग्स दैट यू सी. आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं यहाँ पे, उनको देखेंगे, पहचानेंगे और उनके नेम्स यहाँ लिखेंगे. वी विल राइट द नेम्स हियर. सो यस, व्हाट आर दीज? These are birds. These are birds. B-I-R-D-S, birds. Okay? What is this? This is a car. This is a car. Who is she? She is a girl. G-I-R-L, girl. And what's this? This is a house. H-O-U-S-E, house. The names that you have written are naming words. ये जो नाम हमने लिखे हैं इन्हें कहते हैं नेमिंग वर्ड्स. नेमिंग वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड नाउन्स. ये जो हमने नेम्स लिखे हैं इन्हें नेमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं और नाउन्स भी कहते हैं. अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. नाउन किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम और या किसी जानवर का नाम भी हो सकता है. ओके, यहाँ देखा आपने बर्ड का नाम. देखो बर्ड्स यहाँ जानवर में आते हैं. कार वस्तु, गर्ल पर्सन व्यक्ति एंड हाउस अगेन वस्तु. सो अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग. पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल्स. नाउ underline the nouns in the following sentences. Now children, as you have learned what are nouns, आपको पता चल गया है कि nouns क्या होते हैं. तो आइए अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं जिसमें कि हमें nouns को underline करना है. A bird is on the branch. इसमें noun कौन सा है, किसके बारे में बोला? देखो birds. birds क्या है? animal में आते हैं ना, तो bird is a noun. Fine. And branch is on the branch. branch चीज है, वस्तु है, तो branch भी noun है. Okay? My mother is a teacher. mother. mother again व्यक्ति, किसी person के बारे में बताया जा रहा है. is a teacher. teacher. teacher is also a noun. The dog barks at me. dog animal. dog is an animal. The cow eats grass. cow noun. grass also noun. वस्तु है ना, grass चीज है और cow animal है. The Ganga is a holy river. Ganga is noun and river is also a noun. That is a good girl. girl person. Okay? She lives in a big city. She lives in a big city. City is a noun. Jagah, place. The monkey jumps on the log. Monkey, noun, animal है. On the log. जो log है ये एक वस्तु है. Okay? So log. Fine? A thing. So we have underlined all the nouns here. Now moving ahead. Write 3 nouns for each of the following. अब हमें हर ये जो दिए हुए हैं पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, इनके बारे में 3 लिखने हैं हमें. ठीक है? 3 पर्सन के नेम्स, 3 प्लेस के नेम्स, 3 एनिमल्स के नाम और 3 थिंग्स के नाम. लेट्स स्टार्ट राइटिंग. थिंक ओवर इट. सोचिए. पर्सन. पर्सन में कौन आएगा? अमित. अमित इज अ पर्सन. ओके? Amit is a person. Father is also person. Father भी person है. And teacher is also a person. T-E-A-C-H-E-R. Teacher. Fine. Now place. Jagah. So Agra. Agra is a place.
एक जगह का नाम है. You live in Meerut. Meerut is also a place. I live in Meerut. So it's a place. Fine. And Mumbai. It's also a place. Fine, children. So we have written about the place. Animal. Name of animals. Lion. Lion. Then monkey. M-O-N-K-E-Y. Monkey. And rabbit. Yes. Rabbit. You can write any name. जरूरी नहीं है ये जो नाम मैं लिख रही हूँ यही लिखने हैं आपको. नो, यू कैन राइट एनी नेम. थिंग. थिंग. अब वस्तु. यस. चेयर. CHAIR. चेयर. फाइन. लंच बॉक्स. लंच बॉक्स भी एक थिंग है. लंच बॉक्स. एंड कार. कार इज ऑल्सो अ थिंग. फाइन. So we have written the names of person, place, animal and thing. Now, common and proper nouns. Now, two different kinds of nouns are there. Noun, common noun भी होता है और proper noun भी होता है. अब ये क्या होते हैं common और proper nouns? Let's read. First, read the following sentences carefully. ध्यान से पढ़ेंगे इसे. देखिए, सेंटेंस में 2 कलर से वर्ड्स हाईलाइट किए हुए हैं. उसका भी ध्यान रखेंगे और उसके बारे में बाद में समझेंगे कि क्या है ये. रवि इज अ गुड बॉय. रवि इज अ गुड बॉय. रवि ग्रीन से लिखा है और बॉय रेड से लिखा है. मीना इज अ क्वाइट गर्ल. मीना ग्रीन से लिखा है, गर्ल रेड से लिखा है. सुमन हैज अ पेट डॉग. सुमन इज रिटन इन ग्रीन and dog is written in red. Now, in the sentences given above, the words in green are special names. जो words green से लिखे गए हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों. रवि ग्रीन से लिखा गया है, मीना ग्रीन से लिखा है और सुमन ग्रीन से लिखा है. ये जो ग्रीन से लिखे हैं स्पेशल नेम्स हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम हैं. ओके. अगर सीमा है तो सीमा के बारे में ही बोला जा रहा है. सीमा एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, गर्ल नहीं बोला है, सीमा बोला है. ओके. अब बॉय देखिए, रवि. रवि एक नाम है, पर्टिकुलर नाम. बॉय. अब ये जो बॉय है ये क्या है? एंड द वर्ड्स गिवन इन रेड आर कॉमन नेम्स. कॉमन. बॉय. बॉय तो अलग अलग तरह के हो सकते हैं. बॉयज तो बहुत सारे होते हैं, सबके अलग अलग नाम हैं. अगर हम नाम लिखते हैं किसी का, जैसे हमने रवि लिखा, तो वो क्या है? वो स्पेशल नेम हो गया. और अगर हमने बॉय बोला तो एक कॉमन नेम हो गया. अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस. प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो स्पेशल नेम्स होते हैं, किसी जगह का या किसी व्यक्ति का. ओके. जैसे रवि एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि किसी भी स्पेशल इंसान का नाम है वो. प्रॉपर नाउन्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्पेशल नेम्स. प्रॉपर नाउन्स को स्पेशल नेम्स भी बोला जाता है. मीना इज अ क्वाइट गर्ल. देखिए, मीना स्पेशल नेम है और गर्ल जो है वो कॉमन है, नेम है. सुमन हैज अ पेट डॉग. सुमन स्पेशल नेम, डॉग अगेन कॉमन. किसी डॉग के ब्रीड के बारे में नहीं बताया गया है. ओके. किसी डॉग का नाम नहीं दिया गया है, बट जस्ट डॉग बोला है. A common noun is a name given in common to every person, place or thing of the same kind. एक जैसे जो चीज़ें होती हैं उनको जो जिस तरह से लिखा जाता है उसे कहते हैं common noun. Like boy, there are so many boys in the class. अभी हमने किसी का नाम नहीं लिया तो boys का मतलब हुआ common noun. अगर मैंने बोला कि out of there are so many boys in the class, Ravi is the most intelligent boy of the class. Ravi is the most intelligent. Ravi हो गया special name. Ravi हो गया आपका proper noun. And boys are common noun. Fine? Now let's see what else is there. Remember, all proper nouns begin with the capital letter. अगर सेंटेंस के बीच में भी आता है वो proper noun तो उसे capital letter से लिखेंगे. Fine? Proper nouns are the names of particular person. Ravi, Suman, Mr. Reeraj, etc. अभी आपको बताया स्पेशल नेम्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम होता है. कंट्रीज एंड सिटीज. कंट्री सिटी भी इंडिया. अगर कंट्री बोला जाएगा तो कंट्रीज तो बहुत सारी हैं. अगर हमने बोला इंडिया, रशिया,
अमेरिका, तो ये स्पेशल नेम्स हो गए, फाइन, ऑफ एनी कंट्री। बिल्डिंग्स, कुतुब मीनार, ताजमहल, अब ये क्या है, स्पेशल नेम्स है ना, कुतुब मीनार तो एक ही है, ताजमहल भी एक ही है, फाइन, सो इंडिया गेट भी एक ही है, तो ये जो स्पेशल बिल्डिंग्स के नेम्स हैं ये भी प्रॉपर नाउन है। डेज एंड मंथ्स, नाउ डेज एंड मंथ्स, अगर हमने बोला डेज तो डेज में तो 7 डेज आते हैं, अब कौन सा डे, डेज तो हो गया कॉमन नाउन। अब अगर हमने बोला संडे, मंडे, वेंसडे, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, ओके। फेस्टिवल्स, ये सब हम प्रॉपर नाउन के बारे में बता रहे हैं। फेस्टिवल्स, स्पेशल फेस्टिवल के नेम्स, ईद, दिवाली, होली, क्रिसमस, दीज आर स्पेशल नेम्स। माउंटेन्स, ओशंस, रिवर्स एंड लेक्स, माउंटेन्स, ओशंस लाइक माउंट एवरेस्ट, आर्टिक सी, डल लेक, ये सब स्पेशल नेम्स हैं। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, अब न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स में टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, ये सब पर्टिकुलर पेपर के, न्यूज़पेपर के नेम्स हैं, तो दीज आर नोन एज प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स ये होते हैं, इन ऐसे लिखे जाते हैं प्रॉपर नाउन्स। नाउ वी कम टू, ओके, वी हैव समथिंग टू डू हियर। कलर द क्लाउड्स विथ प्रॉपर नाउन्स इन ग्रीन एंड कॉमन नाउन्स इन रेड। अब ये जो क्लाउड्स में आपके वर्ड्स दिए गए हैं ना, कुछ नाउन्स दिए गए हैं, इनमें से जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन मीन्स पर्टिकुलर नेम, स्पेशल नेम, उनको हम ग्रीन से कलर करेंगे और जो कॉमन नाउन्स हैं उनको हम रेड से कलर करेंगे। तो चलिए पहले हम प्रॉपर नाउन्स को करेंगे ग्रीन से कलर। मार्च, मार्च एक स्पेशल नेम है मंथ का, तो दिस इज टू बी कलर्ड इन ग्रीन, ये हमने ग्रीन से कलर कर दिया मार्च को, ओके, फाइन। नाउ नेक्स्ट इज बुक। बुक तो चिल्ड्रन बहुत अलग अलग तरीके के बुक्स होते हैं, बुक का कोई नेम नहीं दिया हुआ है, तो ये बुक प्रॉपर नाउन नहीं है, अब ये इसको हम ग्रीन से कलर नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज एलिफेंट, यस, एनिमल का एक पर्टिकुलर एनिमल का नाम दिया गया एलिफेंट, दिस इज ऑल्सो अ कैसा नाउन है ये, प्रॉपर नाउन, ओके। बॉय, बॉय, बॉयज तो बहुत सारे अलग अलग बॉयज होते हैं, किसी का नाम तो नहीं दिया है, तो दिस इज अ कॉमन नाउन, फाइन। दशहरा, दशहरा इज अ पर्टिकुलर फेस्टिवल, किसी एक पर्टिकुलर फेस्टिवल का नाम है, तो ये भी प्रॉपर नाउन है, दशहरा, ओके। जापान, जापान, जापान इज अ नेम ऑफ अ कंट्री, एक प्रॉपर पर्टिकुलर कंट्री के बारे में बताया गया है, तो जापान इज अ proper noun, we color it in green. Now book, अब ये book क्या है, ये proper noun तो नहीं है, इसे हमें red में कलर करना है, ये common noun है, तो book को हम किससे कलर करेंगे, red से। And boy, boy is also a common noun, so we color this with red. Fine children? Now underline the proper nouns in the following sentences. Proper nouns हमें underline करने हैं। Proper nouns क्या होते हैं, name of any particular place, person or thing. Fine. Sheetal is the student of modern school. Sheetal किसी particular person का नाम underline कर दिया हमने, proper noun है ये। मॉडर्न स्कूल, स्कूल का भी नाम दिया हुआ है, कौन सा स्कूल, मॉडर्न स्कूल। अगर बोलते हैं स्कूल, ओनली स्कूल, तो ओनली स्कूल तो कॉमन नाउन है, बट हियर द नेम ऑफ द स्कूल इज मेंशन, मॉडर्न स्कूल। मिस्टर दीवान वर्क्स इन नैन्सीज शॉप, मिस्टर दीवान इज प्रॉपर नाउन। नैन्सीज शॉप, खाली शॉप बोलते तो वो कॉमन नाउन होता, यहाँ नैन्सी की शॉप, तो नैन्सीज शॉप इज प्रॉपर नाउन। We celebrate Diwali. Diwali is proper noun. Raju is an intelligent boy. Raju, particular किसी का noun, तो Raju is proper noun. Fine. Now moving ahead, put the words in the correct column. यहाँ कुछ words दिए गए हैं और नीचे क्या दिया है, एक साइड पे common nouns है, एक साइड पे proper nouns है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो भी कॉमन नाउन है कॉमन नाउन के नीचे लिखेंगे, जो प्रॉपर नाउन है उन्हें प्रॉपर नाउन के कॉलम में लिखेंगे।
फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा कॉमन नाउन्स क्या क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं। वीक, WEEK, वीक। वीक का मतलब क्या होता है? वीक का मतलब जो हफ्ते होते हैं। तो उनका कोई पर्टिकुलर नाम दिया गया है? नो, देयर इज नो नेम। सो सॉरी, दिस इज WEEK, वीक। वीक इज अ कॉमन नाउन, उसमें कोई स्पेशल हमें कुछ नेम नहीं दिया गया है। इंडिया, इंडिया इज प्रॉपर नाउन, it will start with a capital letter, India, okay? Football, football, yes, football is a proper noun. Why? Because कोई गेम नहीं बोला गया है, कोई गेम नहीं बोला। अगर गेम बोलते तो वो कॉमन नाउन हो जाता, बट फुटबॉल एक पर्टिकुलर गेम का नाम है। सो फुटबॉल, FOOTBALL, फुटबॉल, प्रॉपर नाउन। संडे, yes, the name of the day is mentioned, so it is a proper noun, Sunday. Ganga, Ganga is again proper noun, GANGA, particular river. Arun, Arun is the name of a particular person, proper noun. Dancer, dancer का कोई नाम, dancers तो बहुत सारे हैं, all the dancers are dancing, किसी का नाम नहीं बताया गया है, so dancer is common noun. June, June is the name of particular month, so June comes in proper noun. Monkey, yes, name of a particular animal, so monkey is also a proper noun. Cat, cat is also a proper noun, name of a particular animal. Fine, children? Read the passage carefully, circle the common nouns and underline the proper nouns. ध्यान से पढ़िएगा पैसेज को और ध्यान रखिएगा कि हमें कॉमन नाउन्स को सर्कल करना है और प्रॉपर नाउन्स को अंडरलाइन करना है। निधि is going to a village. निधि, निधि is proper noun, so we have to underline the proper noun. Village, village का नाम नहीं है, तो ये क्या है? ये कॉमन नाउन है, इसको हम सर्कल करते हैं। With her parents, parents again, father mother कुछ मेंशन नहीं किया है, तो ये कॉमन नाउन है, parents. This is her first trip to the village. Again, village is a common noun. Fine. They have many relatives. Relatives, relatives का नाम ने मेंशन किया, uncle, aunt, ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो relatives are common noun. Her aunt, aunt, again a common aunt, sorry, this is a proper noun, aunt, aunt mention किया नहीं, aunt is a common noun, aunt तो बहुत सारे हो सकते हैं, aunt is a common noun. Sumita, yes, Sumita is the name. Now this is a proper noun. Aunt Sumita and uncle, uncle is a common noun. Varun, Varun is a proper noun, also lived there. Her grandfather lives with her uncle. Grandfather, her grandfather, grandfather, देखिए grandfather तो proper noun हो गया. Lives with her uncle, uncle common noun, and aunt common noun. Her cousin, cousin, cousin का name नहीं दिया गया है, so cousin is a common noun. Has a pet, pet का कोई नाम नहीं है, तो pet भी common noun है. Pet dog named Tommy, yes, Tommy is a proper noun because the name is mentioned here. Fine, children? So, these are some of the common nouns and proper nouns which we had done. So, we end the chapter here and we come to know about the different kinds of nouns, the common nouns and the proper nouns. Please go through this lesson very carefully, and till then I come back again with a new video. Till then what you'll do, you'll be excited to know about the new chapter. So stay connected, stay blessed. Bye.